Okay, so the first numerical we have in electrostatic, again that is related to charges. A charge of plus 2 microcoulomb is placed at x is equal to 0, and a charge of minus 32 microcoulomb at x is equal to 60 centimeter. A third charge minus q be placed on the x-axis such that it experiences no force. The distance of the point from plus 2 microcoulomb is in centimeter. हमें ये कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है. सो हमें गिवन क्या है? सो पहले हमें गिवन सिचुएशन क्या है? we are given we have a charge plus 2 microcoulomb. So this is the position of that charge plus 2 microcoulomb, and it is placed at x is equal to 0. It is placed at x is equal to 0 centimeter. So we can treat this position as, this position can be treated as origin. X is equal to 0 means the charge of plus 2 microcoulomb is placed at origin, and we have another charge at a distance of 60 centimeter. So we move to a distance of 60 centimeter, and here x is equal to 60 centimeter, and the charge is minus 32 microcoulomb. Another charge at a distance of x is equal to 60 centimeter. This is plus 2 microcoulomb. This is minus 32 microcoulomb. This is at x is equal to 0 centimeter, means this is placed at origin, and another charge minus 32 microcoulomb placed at 60 centimeter. A third charge, हमने एक थर्ड चार्ज को प्लेस किया minus q. A third charge minus q be placed on the x-axis. So ये पूरी हमारी x-axis है, इस x-axis पे हमने 3 चार्जेस को प्लेस किया, और प्लेस करने का जो मेथड है वो ये है, डिस्टेंसेस ये गिवन है. अब हमने थर्ड चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया, और हमें पता लगाना है कि इस माइनस क्यू का इस प्लस 2 माइक्रोकूलम से कितना डिस्टेंस रखा जाए. ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, मींस दिस डिस्टेंस, ये हमें कैलकुलेट करना है. दिस डिस्टेंस ऑफ माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम प्लस 2 माइक्रोकूलम, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. दिस डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट, है ना. ये ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए so that the net force on this charge, the net force F net on this charge, that is equal to 0. और ये तभी हो सकता है नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज 0, जब ये जो पोजीशन है, इस चार्ज की जो पोजीशन है वो एक नल पोजीशन हो. नल पोजीशन, नेट फोर्सेस किसी चार्ज के ऊपर तभी 0 होती है जब ये नल पोजीशन है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट नल पोजीशन. बस सीधा सा क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे नल पोजीशन कैलकुलेट करनी है. सो नल पोजीशन करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू d अपॉन रूट q2 सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाय फर्स्ट चार्ज, और ये होता है +1. बट यहाँ पे क्योंकि हमारे पास माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया हमने, ये माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1, और ये -1 रूट के बाहर होगा. सो ये मेरी नल पोजीशन होगी, नल पोजीशन. ओके, सो अब इसको सोल्व करेंगे हम. बहुत ही सिंपल है. 60 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 60/100. सो दिस बिकम्स इक्वल टू, इसको हम सेंटीमीटर में ही रखते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. इसको हम
सेंटीमीटर में है, माइक्रो कूलम में चार्ज है, सो करना पड़ेगा, तो ये हमें करना पड़ेगा, ये 60/100 करना पड़ेगा हमें। सो दिस बिकम्स 0.6 मीटर। ओके, सो ये आ गया हमारे पास 0.6 मीटर डिवाइडेड बाय दिस इज Q2 की वैल्यू प्लेस करेंगे -32 माइक्रोकूलम। सो रूट के अंदर है तो मैं इसको ये -32 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय Q1 is +2 microcoulomb, +2 into 10⁻⁻6 coulomb, and this is -1 outside the root. So जो चीजें कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल करेंगे। So this is 16. So finally we are left with 0.6 meter divided by, and this becomes 16 minus 1. So it can be written as 0.6 meter divided by, this becomes 4 minus 1. So 0.6 meter divided by 3. Okay, so this can be written as 6/10 into 3. So this is 6/30. So 1/5. So this is the distance. 1/5 centimeter. So at this distance, this charge should be placed. Okay, so this is the method. Ultimately, this is the formula we have to use for the null position. For the null position, this is the formula we have to use. Okay, so let us go for the second question. So ultimately, what is the answer? ये ओके, डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही रखा है, इसको चेंज नहीं किया इन्होंने। ओके, हमें निकालना था द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम +2 माइक्रो, इन सेंटीमीटर ही निकालना था। सो क्वेश्चन हमारे पास सेंटीमीटर में ही है। अगर मीटर में होता तो हम ऐसे करते, इसको मीटर में होता तो हम इसको ऐसे करते। अब इसको सेंटीमीटर में ही हमें निकालना है, सो हम इसको सेंटीमीटर में ही, फाइनली जो आंसर हमारा मीटर में आया है हम उसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। So let me convert this centimeter into meter. Okay, so this is equal to, this is 1/5. So I can write it 100/5. So 20 centimeter. So 20 centimeter. So 20 centimeter from, so this is 20 centimeter. So the final distance of minus Q charge from +2 microcoulomb is 20 centimeter. And the remaining distance is, अगर हमारे से पूछा जाए कि इसका डिस्टेंस -32 से कितना है, सो रिमेनिंग डिस्टेंस वो 40 सेंटीमीटर रह जाएगा, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 60 सेंटीमीटर। ओके, राज, ये न्यूमेरिकल क्लियर है? यस सर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं न्यूमेरिकल में? सो दिस इज ए शॉर्टकट टेक्निक, ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया है। अदरवाइज इसका दूसरा मेथड भी है, एक लॉन्ग मेथड है जिसमें हम इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि दूसरा मेथड क्या है कि ये +2 माइक्रोकूलम भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी। सो वो फोर्स कैसे होगी? ऐसे एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी। सो लेट मी कॉल दैट फोर्स एज F1। ये एक सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है। लेट मी कॉल दिस इज फोर्स F1, है ना? ओके, अब इन दोनों चार्जेस के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होगी। सो रिपल्सिव होगी तो ये वो भी इस साइड में होगी, सो वो कितनी हो जाएगी? F2 हो जाएगी, F2। अब हमें पूरी नेट फोर्स निकालनी है, नेट फोर्स। सो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है। सो F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? F1 प्लस F2
F1 प्लस F2 नेट फोर्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। और नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए इस चार्ज के ऊपर? नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर 0 होनी चाहिए, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तभी यहाँ पे नल पोजीशन होगी, नेट फोर्स 0 होगी। सो इसका मतलब क्या होगा? F1 प्लस F2 दैट शुड इज इक्वल टू 0, वो 0 होनी चाहिए, वो 0 होनी चाहिए। सो वो कैसे होगी? इफ F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ये निकाल लो। सो यहां से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो इसकी, ये मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो F1 इज इक्वल टू F2, और हम E1 इज इक्वल टू E2 इजीली निकाल सकते हैं। अगर F1 इज इक्वल टू F2, सो E1 इज इक्वल टू E2। सो फ्रॉम दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट, यहां से भी हमें नल पोजीशन मिल जाएगी। सो ये मेथड यूज करो, फोर्स मेथड यूज करो, या डायरेक्ट नल पोजीशन निकालने का फार्मूला यूज करो, ये बिल्कुल इजी फार्मूला है नल पोजीशन निकालने के लिए। x इज इक्वल टू स्मॉल d रूट q2 अपॉन q1 माइनस 1। सो डायरेक्टली इस फार्मूले से d की वैल्यू हमने प्लेस की यहाँ पे। d दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने पहले इसको मीटर में ही लिख लिया, फाइनल आंसर हमें सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करना है। फाइनल हमें पूछा गया है कि सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है, सो उसको लेटर ऑन मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। सो 0.6 मीटर किया मैंने, दोनों चार्जेस को रखा, जो कैंसिल होता था उसको कैंसिल किया। -1, यहाँ पे -1 क्यों आया है? -1 आया है क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस होता तो ये +1 आता यहाँ पे। ओके, सो -1 माइनस क्यू चार्ज प्लेस है, सो दैट्स व्हाई इट इज माइनस। अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस होता तो ये होता +1। सो बाकी हमने इसको इजीली सोल्व किया। सो अल्टीमेटली आवर डिस्टेंस इज दी 20 सेंटीमीटर। ओके, Yes, sir. okay, so let me erase this first. Raj, ready for the unit test? Yes, sir. Maximum question, they are from the Coulomb law. Okay, so Yes. focus more and more on the Coulomb law. Very means rare questions, they will come from the Gauss law or Gauss theorem. So maximum question, they are on the basis of Coulomb law and its numerical. Yes, sir. Okay. Okay, so let us go for the next part, next question. So finally we calculate 20 centimeter, that was the null position. So 20 centimeter ये वो null position थी। इस position के ऊपर -q चार्ज पे net force 0 है, means अभी at a distance of 20 centimeter from the left side charge, जो -q चार्ज है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। वो अपनी पोजीशन से ना लेफ्ट जा पाएगा ना राइट जा पाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स मींस दोनों चार्जेस के कारण उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, जिसके कारण उसका किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। ना तो एक्स एक्सिस पे लेफ्ट में जा सकता है, ना वो एक्स एक्सिस पे राइट में जा सकता है। सो 20 सेंटीमीटर इज द नल पोजीशन। A force F is acting between two charges in air. If the space between them be completely filled with the medium having a dielectric constant k is equal to 4, the force will be very simple, very easy question, very easy question. So directly from the Coulomb law we can do this question. So apply the so first I will make the diagram. We have two charges. This is the first charge, so let me take it q1, and this is the second charge, let me take it q2, and there is a medium. इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है। अब वो मीडियम क्या है? अब वो एयर नहीं है, और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, जिसको हमने रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k गिवन है, एंड k इज इक्वल टू 4। k इज इक्वल टू 4। हो सकता है कि दोनों चार्जेस किसी लिक्विड में हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 हो,
अभी किसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है वो हमें नहीं पता, बट कोई ना कोई ऐसा फ्लूइड होगा, कोई ना कोई ऐसा मीडियम होगा जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 होगा। सपोज मैं मान लेता हूं कि ये ग्लाइसरीन वगैरह होगा कुछ, या हो सकता है कि पेट्रोल हो, ऑयल हो। तो दोनों चार्जेस को, पेट्रोल, ऑयल या ग्लाइसरीन, किसी ऐसे फ्लूइड में रखा है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। एग्जैक्टली आई डोंट नो कि किसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। सो अभी बताना है कि अब इन दोनों चार्जेस के बीच में, है ना, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी होगी। सो फोर्स हमें एयर में तो पता है, एयर में कितनी फोर्स होगी, एफ एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स इन द एयर। बट जब हमारे पास कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम है, सो अब क्या हो जाएगा, दिस फोर्स दैट विल बिकम 1/K ओके। सो अब हमारे पास जो फोर्स इन एयर होगी वो क्या हो जाएगा, फोर्स इन एयर मान लिया हमारे पास कितना है, एफ एयर, है ना, ये हमारे पास है फोर्स इन एयर। तो अब डायलेक्ट्रिक में हमें निकालनी है। सो एफ डायलेक्ट्रिक कैसे लिखेंगे, डायलेक्ट्रिक एफ डायलेक्ट्रिक कैसे लिखेंगे, दैट इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय के। सो फोर्स in air divided by k is 4. So this is the answer. So this is the answer, or we can write F upon 4. So this is the correct option, right? Yes, sir. Okay, so now we'll take the next question. An electron and proton are sent into an electric field. The ratio of force experienced by them. एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सेंड किया, और देखते हैं कितनी उसके ऊपर फोर्सेस का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, फोर्सेस का रेशियो कैलकुलेट करना है। सो अब देखो, इसमें जो हमारी स्लाइड में सॉल्यूशन गिवन है उसमें डायरेक्टली यूज किया गया है फार्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू ई। अब Q इंटू ई सेम है तो F सेम है। सो मैं इसको एलाबोरेट करूंगा पहले कैसे। सो अब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले ड्रा किया। लेट मी मेक द डायग्राम फर्स्ट। ओके, सो लेट मी ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रा किया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ओके, सो अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक प्रोटॉन यहाँ पे है। प्रोटॉन को मैंने P से डिनोट किया यहाँ पे। वी हैव वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी एक फोर्स लगेगी। सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, पहले इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी वो कैलकुलेट करते हैं। सो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। F इज इक्वल टू Q इंटू ई। सो इसको कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन E इंटू ई, ऐसे लिखेंगे इसको, है ना, इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो इसके यूनिट हो जाएंगे E इज इक्वल टू F अपॉन Q। सो न्यूटन पर कूलम। सो 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस विल बिकम फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, that will be equal to -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इट इज अ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास अज्यूम किया हमने 10 न्यूटन पर कूलम। सो हम ये निकाल सकते हैं फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब हमें प्रोटॉन के ऊपर फोर्स निकालनी है।
फोर्स ऑन द प्रोटॉन। तो फोर्स ऑन द प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना है वो भी सेम है बट वो पॉजिटिव है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 न्यूटन पर कूलम। सो अब इसको जो कैलकुलेशन करके आंसर यहाँ पे आएगा है ना, एक्स मान लो एक्स आया तो सेम एक्स यहाँ पे आएगा, तो दोनों में सेम फोर्स होगी। सो दैट्स व्हाई एफ इज सेम, बिकॉज चार्जेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, सो दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगेगी। क्लियर? यस सर। Okay, next question. An electron having mass 9.1 into 10 to power minus 31 kilogram is sent into an electric field of intensity 9.1 into 10 to power 6 Newton per coulomb. The acceleration produced is very simple question. So यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 9.1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन जिसका मास हमें पता है, मास कितना है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास है, स्टैंडर्ड मास है। सो इस मास को लेके इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा। सो हमें पता है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इलेक्ट्रिक इसके ऊपर लगेगी और वो कितना होगा m into a, where m is the mass of the electron, a is the acceleration of the electron. Okay, so let me call this is equation number 1. हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ये वाली इक्वेशन भी होगी q into e, है ना। सो ये एक फोर्स लगती है, ये तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन कहां से आएगा, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा। सो इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, सो राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे। सो m into a is equal to q into e. Our target is to find out the acceleration. So हमें acceleration ही देखो, हमारे क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया है, find the acceleration produced. So acceleration हम यहाँ से निकाल लेंगे, a is equal to qe divided by m. अब इसको सोल्व करते हैं। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना गिवन है 9.1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी हैव 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सो पहले पावर वाली टर्म को ही हम सोल्व करते हैं, पावर वाली टर्म को ही इसको सोल्व करेंगे। सो इसको डायरेक्टली हम कैसे सोल्व करेंगे, सो 1.6 इंटू 9.1 को एक साथ लिख लिया डिवाइड बाय दिस 9.1। सो ये 9.1 से 9.1 कैंसिल, और पावर वाली टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻⁻19 प्लस 6 एंड प्लस 31। सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू, अब 10⁻⁻19 और ये हो गया 37, और 37 में से हम माइनस करेंगे 19, तो ये कितना हो गया 17 और 9, ये कितना हो गया 17 8।
So this is 18. 8 and this is 2, 1, 18. So this can be written as 10 raised to the power plus 18 plus 18. So 1.6 meter per second square. So you see the correct option is the first one. So this is the correct option. 1.6 into 10 raised to the power 18 per meter square. Right? So बिल्कुल easy question था और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा. सो वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स बाय दीज टू इक्वेशंस. F is equal to m into A, equation number 1, and F is equal to Q into 2E, equation number 2. Okay, Raj, Anjali, क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल कोई मुश्किल तो नहीं? No, sir. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो? Yes, sir. वेरी गुड. Okay, so now take another one. Skip this question because this question is not so chloride ion, so I will just skip it. Related to chloride ion, I will skip this question and I will move to the next one. Okay, infinite, skip this question also, skip this one also. Okay, and let me take this one. Let me take this one. A proton of mass m. So we have a proton of mass m, charge E is released from rest in a uniform electric field. A very important question, very important question, very important and very conceptual as well as a numerical question. So a proton of mass m. So imagine करते हैं एक प्रोटॉन. ये हमने एक प्रोटॉन इमेजिन किया. उस इस प्रोटॉन का मास है m. This is my proton. This is my proton of mass m and charge E is released from rest. इसको रिलीज कर दिया रेस्ट से. In a uniform electric field of strength E. इसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया हमने. ओके, सो ये हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हमने रख दिया. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा. द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस d. ओके, सो ये जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी. अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के कारण इसका एक एक्सेलरेशन होगा क्योंकि हमारे पास है F इज इक्वल टू m इंटू ए. सो ये एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा. सो चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, है ना. तो हमें जब चेंज इन वेलोसिटी होगा सो चेंज इन डिस्टेंस होगा, चेंज इन डिस्टेंस होगा, चेंज इन डिस्टेंस होगा. वही हमें निकालना है, वही हमें निकालना है. सो हमें यही निकालना है, चेंज इन डिस्टेंस. हमें ये निकालना है कि द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस d. d डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस. मान लिया उसने d डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ये d डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया. सो ये d डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा. सो बहुत इजी है. डायरेक्टली शुरू में यहाँ पे लिखा है रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट में है तो उसको इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, u इज इक्वल टू 0 होगी. और जब उसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी v बन चुकी होगी. सो डायरेक्टली वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे यहाँ पे.
कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सो v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, ये यूज करें। अब कंफ्यूजन ये है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें हम, कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, या v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें। सो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो आई विल प्रेफर, इन दोनों में से कोई मर्जी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस निकालना है, सॉरी टाइम निकालना है, डिस्टेंस हमें गिवन है। सो बट टाइम के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, टाइम निकालना है हमें। सो अवॉइड दिस वन एंड दिस वन, सो फोकस ऑन इक्वेशन नंबर 2। सो इन इक्वेशन नंबर 2 हमें u तो जीरो ही है, सो u जीरो है। सो डी एस की जगह हम लिखेंगे d इज इक्वल टू हाफ ए टी स्केयर, ए टी स्केयर। सो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, टाइम टेकन टू ट्रेवल। सो टी स्केयर इज इक्वल टू 2d अपॉन a। सो t इज इक्वल टू रूट 2d अपॉन a। So this is the time taken by the electron in a electric field to cover a distance d. So d distance travel करने में उसको ये टाइम लगा। ओके, सो बहुत इजी है। हमें ये इक्वेशन इसलिए नहीं यूज कर सकते इक्वेशन नंबर 1 की, हमें डिस्टेंस नहीं गिवन इसमें। इक्वेशन नंबर 3 इसलिए यूज नहीं कर सकते, इसमें टाइम गिवन नहीं है। सो इक्वेशन नंबर ये 2 का ही यूज करके, क्योंकि इसमें टाइम गिवन है, इनिशियली वो रेस्ट में था, सो उसकी इनिशियल स्पीड 0 है। सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द टाइम टेकन। क्लियर अंजलि, राज? यस सर। Okay, so let me check the time. So I can take one more question. One more question. Four identical charges, each of 1 microcoulomb, are placed at the corner of very easy question. Four identical charges, each of 1 microcoulomb, are placed at the corner of a sphere of side 10 centimeter. The resultant field strength at the center is very easy question. So let me take, let me make a sphere. So make a sphere, and this is my sphere, and I have 4 charges. Let me take, this is Q1, Q2, Q3 and Q4. So हमें given है, we are given Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q4 is equal to 1 microcoulomb. So ये सारे 1 microcoulomb के हैं, 1 microcoulomb, 1 microcoulomb, 1 microcoulomb and 1 microcoulomb. So हमें इसके सेंटर पे, इस स्क्वायर के सेंटर पे, यहाँ पे इन चारों चार्जेस के कारण नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। सो बहुत इजी टेक्निक है। हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस किया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस किया। सो 1 बाय 1 चेक करते हैं कि Q1 के कारण इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। मान लिया वो फोर्स है F, रिपल्सिव फोर्स F ड्यू टू 1, तो मैंने इसको F1 लिख लिया। ऐसे Q3 के कारण भी इसके ऊपर एक फोर्स होगी Q3 के कारण, और वो सपोज करो होगी F3, वो ऐसे होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। ऐसे ही Q2 के कारण होगी, Q2 के कारण भी इधर होगी, Q2 के कारण मान लो F2 होगी, रिपल्सिव होगी तो इस डायरेक्शन में होगी। Q4 के कारण भी एक फोर्स होगी,
वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि सारी फोर्सेस इसको रिपेल करेंगे F4। अब क्योंकि सारे 1 कूलम के चार्जेस हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि F1 इज इक्वल टू F2, F1 is equal to F2 is equal to F3 is equal to F4, क्योंकि चार्जेस बराबर हैं और यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो भी प्लस क्यू नोट है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू एफ। सो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी हर एक के कारण एफ लगी होगी। सो ये भी देखो, ये भी कितनी हो जाएगी एफ, ये कितनी हो जाएगी एफ, और ये भी कितनी होगी एफ एफ। तो ये एफ और ये एफ आपस में कैंसिल, ऐसे ये भी एफ होगी और ये भी कितनी होगी एफ, तो ये एफ और ये एफ भी कैंसिल। सो एफ नेट, नेट फोर्स कितनी होगी एफ नेट ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट, दैट विल बी 0। सो नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगी। ओके, so let me take the attendance. I have only 2 students, Anjali and Raj. Okay, and all the best for your tomorrow unit test. Okay, so that's all for today. Thank you, sir. Okay.